आंध्र प्रदेश काबीना इजलास में 69 तजावीज मंजूर, क्वांटम कंप्यूटिंग निजाम को हरी झंडी दिखाई गई। रियासती वज़रा को चीफ मिनिस्टर ने दी मुबारकबाद। तमिलनाडु के वजीर आला स्टैलिन का इल्जाम, कहा SIR को DM के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। RSS के माली मामलात पर कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे के सख्त सवालात, मोहन भागवत को कानूनी माहिरीन के साथ मुबाहिसे का दिया चैलेंज। तेलंगाना तराने के खालिक और मारूफ शायर अंदेसरी का इंतकाल, रियासती एजाज के साथ आखिरी रसूमात का ऐलान। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने RSS के फंड्स और शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर RSS वाकई रजाकारों के चंदे से चलने वाली तंजीम है तो फिर इसके माली जराए, डोनर्स और टैक्स झूठ पर अवामी वजाहत होनी चाहिए। प्रियंक खड़गे ने एक पोस्ट में लिखा, RSS ने 100 बरसों तक कौमी परचम, आज़ादी की तहरीक और हिंदुस्तानी आइन की तौहीन की। प्रियंक खड़गे ने सवाल किया कि RSS के पास अरबों रुपए के दफातर कहां से आ रहे हैं, कौन फंड कर रहा है, और अगर ये इफराद की तंजीम है तो फिर इन्हें टैक्सेस से छूट क्यों। उन्होंने मजीद कहा कि RSS सरबराह मोहन भागवत अपने ही हामियों के दरमियान तकरीरें कर रहे हैं जो पहले ही ब्रेन वॉश हो चुके हैं। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर RSS अपने मौक़िफ़ में इतनी ही पुरएतमाद है तो वो कानूनी और आईनी माहिरीन के साथ अवामी मुबाहिसे करे। Mr. Bhagwat replied in his echo chamber with Swayam Sevaks. Which of the questions has he replied correctly? If it is a body of individuals, that doesn't make them exemptable from taxes. They need to they need to be tax assessee still. Just because Mr. Mohan Bhagwat says the rule changes, is it? And he cited some High Court order. The High Court, the query that was posted that time or the case that happened that time was entirely different from what we are asking. On what basis are they being exempted? So that means tomorrow even I will form a body of individuals with the same format of RSS, and I will take Guru Dakshina, and the IT and the government will agree to it. I will also call it Guru Dakshina. I will also call it Dakshina. Will the government agree to it? And what is the point of Mr. Mohan Bhagwat addressing Swayam Sevaks? They are already brainwashed. If he is so confident that he is legally correct, let the entire RSS have a debate with the legal experts. Let them have a debate with constitutional experts, not in an echo chamber where you will talk to your Swayam Sevaks. They will only clap, they will only cheer you, and then you claim victory. See, you are answerable. I have told you, right? If they want to really have a debate, let's set the tone for debate. Let us set some parameters. Let's set some wireframe for a debate. Let us debate only on the things that they have printed in the Organizer magazine. On the Constitution, on the national flag, on the freedom struggle, whatever their ancestors have written, whatever they have published in their mouthpiece Organizer. On the flag, on the Constitution, on RSS, on Dalits, on women empowerment, let's have a debate. तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टैलिन ने बड़ा इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम को DMK के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने बयान में स्टैलिन ने कहा कि मुखालिफिन पहले इनकम टैक्स और CBI के जरिए इनकी पार्टी को दबाने की कोशिश करते थे और अब वो SIR को एक नया हरबा बनाकर DMK को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि ये हरबा शायद दूसरी रियासतों में काम करे, लेकिन तमिलनाडु में जहां DMK इख्तिदार में है ये हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। स्टैलिन ने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत किसी भी सियासी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं। அப்புறம் இது போயிருக்காரு
கோர்ட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. எதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் திமுக பெட்டிஷனில் அதில் அவரே ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு வந்து வேறு வேலை இல்லை, அதனால விமர்சனம் வைக்கிறாரு. அதுக்கு நாங்கள் கவலைப்படல, எங்கள் வேலையை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கோம்ல, நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கோம். நாளைக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோம். அதுக்கு பிறகு பாருங்க. கூட்டத்தை பார்க்கும்போது எப்படி சார் இருக்கு மனசுக்கு? கூட்டத்தை பார்க்கறது இல்லை, எப்போதுமே எங்களுக்கு மனசு நல்லா தான் எத்தனையோ திட்டங்களை நிறைவேற்றினாலும் எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வச்சுட்டே இருக்காங்க. வேலை கிடையாது, செஞ்சாகணும். 26 தேர்தலில் 4 முறை போட்டி இருக்குங்கிறாங்க. 26 தேர்தலில் எத்தனை முனை போட்டி வந்தாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையில் இருக்கிற கூட்டணி தான் மாபெரும் வெற்றி பெறும். 7வது முறையாக திமுக நிச்சயமாக ஆட்சி அமைக்கும். பலமா பாக்குறீங்களா? எப்படி சார் எதிர்க்கட்சிகளோட பலவீனத்தை பலமா பார்க்கல, பலவீனமா பார்க்கல. अमरावती सेक्रेटरिएट में आज आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस अहम इजलास की सदारत की। इजलास में मजमूई तौर पर 69 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। तकरीबन 3.5 घंटे तक मीटिंग चलती रही। इस दौरान अमरावती में कंप्यूटिंग निज़ाम के क़याम को हरी झंडी दिखाई गई। राजधानी और मुख्तलिफ इदारों को ज़मीनों की अलॉटमेंट से मुतालिक CRDA के फैसलों को मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने मोंथा तूफ़ान के दौरान मौसर काम करने पर रियासती वज़रा और अफसरान को सराहा। उन्होंने कहा कि रियासती मिशनरी ने गांव की सतह से लेकर रियासती सतह तक बेहतरीन हम आहंगी के साथ काम किया, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियां तेज़ी से मुमकिन हो सकी। चंद्रबाबू नायडू ने वज़रा को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सब ने ज़मीनी सतह पर मेहनत की, मैंने खुद आपकी लगन देखी। टीम स्पर्ट के साथ काम करेंगे तो हमेशा ऐसे ही मुस्बित नताइज मिलेंगे। काबीना इजलास में रियासती तरक्की, अवामी फलाह और तूफ़ान से मुतासिरा इलाकों में इमदादी इक़दाम पर तफसीली गौर व ख़ौस किया गया। मुल्क के मशहूर तरीन मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में इस्तेमाल होने वाले घी की सप्लाई से मुतालिक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। CBI की खुसूसी तहकीकात टीम ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान मंदिर को जाली और मिलावट शुदा घी फराहम किया गया। तहकीकात के मुताबिक भोले बाबा डेयरी ने तकरीबन 68 लाख किलो घी मंदिर को सप्लाई किया और इसके लिए 250 करोड़ रुपए से ज़ायद चार्ज किए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने एक कतरा दूध या मक्खन भी नहीं फराहम किया। वजीर नारा लोकेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा SIT ने सच्चाई सामने लाई है और ये सिर्फ जालसाजी नहीं बल्कि हिंदू अकीदे पर हमला है, एक मुकद्दस एतमाद की तौहीन है। जो लोग इस जुर्म में मुलविस हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। CBI की रिपोर्ट के बाद रियासती सतह पर मजहबी और सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। Tirumala Tirupati Devasthanam Laddu adulteration is unforgivable crime. As far as Venkateswara Swami spirituality, which was hatted by anyone, those were punished very severely, which was proved as evidence in past 15 to 20 years if we examine. In the year between 2019 and 24, spiritual divinity of Tirumala Tirupati Devasthanam was undermined. YSRCP-led Jagan Mohan Reddy government had seen Tirumala Tirupati Devasthanam as income earning source rather than spiritual destination. CBI had delivered various information in their investigation process regarding to the adulteration of Laddu causes the fake ghee which used. Between 2019 and 24, Bole Baba Organic Dairy, they had supplied 68 lakh kgs of ghee to Tirumala Tirupati Devasthanam, but single drop of milk and cheese or butter they didn't acquired or procured from any source. Unfortunately, the shocking facts revealed various chemicals were procured by the Bole Baba Organic Dairy to prepare the fake ghee which supplied to the Tirumala Tirupati.
अनामया जिले से खबर है। रायचोटी में तेलुगु देशम लीडर जी बादशाह ने कैंप ऑफिस में टीडीपी कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने श्रीकांत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि रायचोटी के लोगों ने श्रीकांत रेड्डी को झूठे श्रीकांत रेड्डी का खिताब दिया है। उन्होंने कहा कि लोग श्रीकांत रेड्डी के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि श्रीकांत रेड्डी ने अक़लियतों के वोटों से 4 मरतबा कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अक़लियतों के लिए कोई काम नहीं किया बल्कि इन्हें धोखा दिया। तेलुगु देशम लीडर ने मजीद कहा कि इन्हें चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और रियासती वजीर मंडीपल्ली के खिलाफ तनकीद का कोई हक नहीं है। పాత్రికులందరికీ నమస్కారములు। నిన్నటి దినాన మాజీ శాసనసభ్యులు శ్రీకాంత్ రెడ్డి మా ప్రియతమ నాయకులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిపై మరి అలాగే గౌరవ మంత్రివర్యులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ అన్న గారిపై ఆయన విమర్శలు చేయడం సబబు కాదు। ఛాలెంజ్ విసరడము దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుగా ఉన్నాయి। ఆయన మాట్లాడుతుంటే ముందే ఆయనకు ఒక బిరుదు అనేది రాయచోటి ప్రజలు ఆయనకు ఒక బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది, అబద్ధాల శ్రీకాంత్ రెడ్డి అని। మరి ఇప్పుడు మాజీ శాసనసభ్యుని హోదా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇచ్చినా కూడా ఆయనకు బుద్ధి రావడం లేదు। అభివృద్ధి అంటే ఆయనకు తెలుసా అని చెప్పి అడుగుతున్నా నేను। అభివృద్ధి అంటే వారికి కానీ వారి ఫేక్ పార్టీకి కానీ అంటే ఫేక్ వైసీపీ పార్టీకి తెలియదు। వారి యొక్క పునాదే వైసీపీ పార్టీ యొక్క పునాదే అబద్ధాల అంటే అబద్ధాల పునాదిలో నుండి వచ్చిన పార్టీ వైసీపీ పార్టీ, వారి యొక్క నాయకులు। ఆయన మాట్లాడుతుంటే దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుగా ఉన్నాయి। ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు, నేను అంటే శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఒంటరిగా వస్తాడంట, ఒంటరి అధికారులను పెట్టాలంట, అధికారులు సమాధానం చెప్తారంట। నీకు అధికారులు కాదు సమాధానం చెప్పాల్సింది, నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నువ్వు ప్రజావేదిక వద్దకు రా। ప్రజావేదిక ముందర మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరం వస్తాము। మా మంత్రివర్యులు రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారితో నీకు అవసరం లేదు, మేము వస్తాం। మేము అడిగిన మాటలకు నువ్వు సమాధానం ఇవ్వు। నీ ప్రభుత్వ హయాంలో మైనార్టీలకు నువ్వు న్యాయం చేశావా? 4 పర్యాయాలు మైనార్టీల ఓట్లతో గెలిచి आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर जंगलात व माहौलियात पवन कल्याण ने चित्तूर जिले में कौम की हाथियों के तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया। ये मरकज 20 एकड़ अराजी पर मुहित है, जो पालमानी मंडल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मुतसिल गांव में कायम किया गया। इसका मकसद इंसानी बस्तियों में भटकने वाले जंगली हाथियों की नकल व हरकत पर नजर रखने और उन पर काबू पाने की तरबियत देना है। दरअसल हाथी पड़ोसी रियासत तमिलनाडु और कर्नाटक से मगरबी घाट के किनारे पर वाक़ मडोमलाई और बनरघाटा पनाह गांव से आंध्र प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं। हाथी अक्सर खेतों में भटक जाते हैं और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं और वो इंसानी जानों के लिए भी खतरा बनते हैं। इसी वजह से एपी हुकूमत ने यह प्रोग्राम शुरू किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना सेक्रेटरिएट में रियासती वजीर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। इन्हें अक़लियती फलाह और पब्लिक इंटरप्राइजेज के महकमे अलॉट किए गए हैं। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर ए लक्ष्मण, कांग्रेस के रियासती सदर महेश कुमार गौड़, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा, अफजल बयाबानी, सीनियर कांग्रेस रहनुमा संपत कुमार और अजहरुद्दीन के अहले खाना मौजूद थे। पार्टी कायदीन ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। अजहरुद्दीन ने कहा कि वो वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से उन पर एतमाद पर पूरा उतरने के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करेंगे।
कर्नूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पी विश्वनाथ ने कहा कि कर्नूल शहर में बुधवारा पेट और मेडिकल कॉलेज के करीब सड़क की तोसी के लिए शाशा मस्जिद कमेटी का ताउन काबिल सताइश है। सड़क की तोसी में मस्जिद के दुकानात को मुनहदिम कर दिया गया है। इस ज़मीन में कमिश्नर ने सड़क की तोसी के मुआवजे के चेक्स रियासती हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मस्जिद कमेटी अरकान के हवाले किए। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि बुधवारा पेट पर ट्रैफिक में खलल का मसला बड़े अरसे से था। रियासती वजीर टी.जी. भरत की खुसूसी दिलचस्पी से ये मसला हल कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को एक हुक्म जारी किया था जिसमें दुकानों को हटाकर ट्रैफिक के मसले को हल करने का हुक्म दिया था। मस्जिद कमेटी की जानिब से ज़मीन के मालिकाना हुकूक साबित करने पर मुआवजा फराहम करने का हुक्म दिया था। इस ज़मीन में 27,11,000 से ज़ायद रुपयों का चेक वक्फ बोर्ड CEO के नाम जारी किया। कमिश्नर ने इस फैसले को एक तारीखी करार दिया। उन्होंने शाशा मस्जिद कमेटी के अरकान, अवामी नुमाइंदों और कायदीन का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने शहर की तरक्की में हम आहंगी से ताउन किया। బుధవారపేటలోని షాషా మసీదు ముందున్నటువంటి షాప్ రూమ్లో మన మసీద్ కమిటీ సభ్యులు ప్లస్ మిగతా కమ్యూనిటీ ఎల్డర్స్ అందరి సహకారంతో మన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వారి కోఆర్డినేషన్తో గౌరవ మంత్రివర్యులు భరత్ సార్ యొక్క ఇనిషియేషను ప్లస్ వారి యొక్క ప్రోత్సాహము మరి వారి యొక్క గైడెన్స్తో ఈరోజు సామరస్యంగా అందరికీ ఆమోదకరంగా ఆమోదయోగ్యంగా ముఖ్యంగా ఈ కమిటీ సభ్యుల ఇబ్బంది పడకుండా ఆ షాపులకు కావాల్సినంత కాంపెన్సేషన్ ఇస్తూ టీడీఆర్లు ఇస్తూ ఈ సమస్యను మనం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోగలిగాం. మేము కూడా వాళ్ళకి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకూడదు. ఇక్కడ రోడ్డు చాలా నేరోగా ఉంది. మనము వాళ్ళకి ఏ విధమైన మా హదీస్లోనే, మా ఖురాన్ హదీస్లోనే ఏ ఒక్కరికి మా వల్ల అన్యాయం జరగకూడదు, ఇబ్బంది కలగకూడదు అనేది ఉన్నది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ముందుకు రావడం జరిగింది. అది కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ ఉన్నప్పటికీ మాకు తగిన పరిహారం మాకు సరిగా అప్పుడు అందకపోవడం వల్ల ఇది డిలే జరగడం జరిగింది. లేకపోతే గత 10 సంవత్సరాల క్రితమే ఇది జరిగేది. ఇద్దరి సహకారంతో ఇప్పుడు మాకు తగిన న్యాయం జరిగింది అనిపించి మేము కూడా ప్రజలకు సహకారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో మేము సంతోషంగా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము షాపులు రోడ్డుకు తొలగించి రోడ్డుకు సహకరించాలని సహకరిస్తున్నాం. మంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మసీద్ కమిటీకి ₹1 కూడా తగ్గకుండా పరిహారం చెల్లించాలి అని ఆయన గతంలోనే చెప్పారు. చాలామంది ప్రయత్నం చేశారు కానీ దీనికి సొల్యూషన్ తీయలేకపోయినారు. మంత్రి గారు, కమిషనర్ గారు, జేసీ గారు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకొని ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎన్నో సార్లు మంత్రి గారి ఆఫీస్కి కంప్లైంట్స్ రావడం జరిగింది. అన్ని ఇష్యూస్ని క్లియర్ చేస్తూ ఆయన ముందరికి వచ్చి ఈరోజు చెక్ కూడా అందజేయడం మాకు చాలా आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सीपी ब्राउन की जयंती के मौके पर उन्हें अकीदत पेश की। सीपी ब्राउन मशहूर मुहक्किक और ज़ुबान तेलुगु के मुखलिस खादिम के तौर पर मशहूर हैं। जगन ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि सीपी ब्राउन ने तेलुगु ज़ुबान से गहरी मोहब्बत की और इसके अदब को तहरीर और अशात के ज़रिए महफूज करके दुनिया भर में मुतारिफ करवाया। उन्होंने मजीद कहा कि ब्राउन की तरतीब दी गई तेलुगु अंग्रेज़ी डिक्शनरी ने तेलुगु ज़ुबान की तरक्की की एक मुस्तहकम बुनियाद रखी। वाईएस जगन ने कहा कि सीपी ब्राउन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने तेलुगु ज़ुबान और तहजीब को आलमी सतह पर एक नई पहचान दी। तेलंगाना के मुमताज़ तेलुगु शायर, नगमा निगार और रियासती तराने के खालिक अंदेसरी का इंतकाल हो गया।
वो 64 बरस के थे। इतवार की रात वो अपने मकान पर अचानक शदीद अलील हो गए, जिसके बाद उनके अहले खाना ने उन्हें हैदराबाद में फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। वहां इलाज के दौरान पीर की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आंदेसरी के अचानक इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती तराने के खालिक आंदेसरी की मौत तेलंगाना की अदबी दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत ने वजीर आला की हिदायत पर ऐलान किया है कि आंदेसरी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। वजीर आज़म मोदी ने भी आंदेसरी के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम जारी किया है। Yeah, definitely. It's a very sad news as far as the state is concerned. Andesri is a renowned poet, was come up with lots of hardships in the life and with a social, commitment that all the songs, what all that he has written, that shows that his passion towards the, poorer sections and the backward class people, and more so particularly about the Telangana state. So his song, as you all aware, that the state government has taken it as an official song for the state, and definitely we feel so sad the moment we have come to know that we got shocked. We are extending all the government. Andesri was a great poet. It's a great loss to the Telangana. He was in the forefront in Telangana movement, and his song Jayo Telangana played a vital role in the achievement of Telangana. I pray my heartfelt homage to Andesri. My heartfelt condolences to the family, and may his soul rest in peace. I think he's a great writer, lyrician. He used to write very good lyrics. He was a good singer as well, and the most important thing is that he was with the Telangana during the time of Telangana agitation. He played a very major role. So it's a very sad day for the state of Telangana, and hopefully, we'll get over it, and then we'll remember he will be remembered forever. Andesri is one of the most distinguished poets, singers, a very strong votary of separate Telangana state, huge contribution to the Telangana movement, and a great personality in every way. His loss, and that too at an age which is quite premature. I mean, he passed away today, he was just 64 years of age. I also know him personally very well. It's a deep personal loss and a loss to the people of Telangana. Yeah. करनूल जिले मंत्रालयम असेंबली हल्के से खबर है, यहाँ वाक़ई अदूनी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड के हुक्काम की गफलत के बाइस मुकामी किसान सख्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक महाराष्ट्र से आने वाले ताजिर गुज़िश्ता 4 दिनों से कोटाना हॉल गांव में मुकामी किसानों से इंतहाई कम कीमत पर कपास की खरीदारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अदूनी मार्केट यार्ड में फी क्विंटल पर कीमत से 5 से 6,500 रुपये तक मिल रही है, जबकि महाराष्ट्र के ताजिर 7,150 रुपये तक अदा कर रहे हैं। इसी वजह से किसान अपनी पैदावार महाराष्ट्र के ताजिरों को फरोख्त करने पर मजबूर है। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अदूनी मार्केट यार्ड के हुक्काम और मुकामी दलाल मिलकर किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जबकि ज़राई महकमे के अफसरान की गैर हाजिरी और बेअमली सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही है। ఇది పత్తి ఎక్కడ పోతుందన్నది? ఇది మహారాష్ట్ర. ఇది పత్తి వచ్చేసి ఆదంలో సీసీ రేట్ వచ్చేసి 8,300 ఉంది. మీరు వీళ్ళు మహారాష్ట్ర వాళ్ళని అమ్మే కారణం ఏమి? అక్కడ తీసుకోవడం లేదు సార్. మార్కెట్ కి మేము ఏ మార్కెట్ లో? పత్తి కమిటీ ఆదోని కమిటీ లో తీసుకోవడం లేదు. అవునవును. రేట్ తక్కువ ఉంది అక్కడ. ఎంత ఉంది? 6,500. 6,500 ఉంది. అది మీరు పోయి వచ్చినాక చెప్తారా? పోయి వచ్చినాము. బిల్ ఉంది మొన్న అమ్మొచ్చింది. బిల్ ఉంది మొన్న. పత్తి తీసుకుని పోతాము, రేట్ సరిగా లేదు మాకు, దానికోసం వీడు ఇచ్చినాం. కుంటున్నాడు మాకు పత్తికి రేట్ లేదు. जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियों में उगने वाला कीमती ज़ाफ़रान की अब केरला में भी काश्त की जा रही है। त्रिशूर के रहने वाले जेम्स कपन ने अपनी
छत पर जदीद एरोपोनिक्स तकनीक के जरिए ज़ाफ़रान की कामयाब काश्त की है। एरोपोनिक्स एक ऐसी जदीद काश्तकारी तकनीक है जिसमें मिट्टी के बगैर हवा और नमी के जरिए पौधे उगाए जाते हैं और माहौल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा जाता है। जेम्स ने बताया कि उन्होंने छत पर एक खास कमरा तैयार किया है जिसमें कूलिंग सिस्टम नस्ब किए गए हैं ताकि कश्मीर जैसे ठंडे माहौल की नकल की जा सके। खेती जो है किसी को भी कर सकते हैं। जो मैं जो इधर कर रहा है, घर के ऊपर जो है छत है, छत के ऊपर जो है एक रूम बनाया है। रूम जो है ना पफ पैनल से बनाना है। उसके बाद जो है उसका मैं कूलिंग सिस्टम बनाना है। कूलिंग सिस्टम के बाद जो है ह्यूमिडिफायर, डीह्यूमिडिफायर इस तरह का जो इक्विपमेंट है उसमें लगा के एरोफोनिक तरीक़ा से इधर खेती कर रहे हैं। कश्मीर से मैं इसका बल्ब लेके आया, सैफरॉन बल्ब लेके आ गया है। उसके बाद जो है इसका नीम ऑयल से ट्रीटमेंट करना है। सैफरॉन का जो है 3 लाख से लेके 6 लाख तक इसका भाव बढ़ता है। और ये जो है हम लोग जो है होली में इस्तेमाल करते हैं, मंदिर में जो है पूजा के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और जो है स्टार होटल्स में ये जो है फूड में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का इसका मार्केट बहुत ज़्यादा है। और इंडिया में जो है केवल 10% जो है उत्पादन होता है, बाकी जो है शहर करपा में अबू बकर नामी एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक खलील नगर आयशा नगर का रहने वाला बाज़ नौजवान नशे के आदी हो गए हैं जिसकी वजह से अक्सर मुकामी लोगों से झगड़ा करते हैं। इसके अलावा इनके लिए कत्ल करना भी आम बात हो गई है। इन तमाम नौजवानों का ताल्लुक मुस्लिम तबके से है, ताहम ना ही इनके वालिदीन पर तवज्जो दे रहे हैं और ना समाज इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहा है। करपा में इस वक्त आस्ताना मखदूम इलाही उर्स तकारीब जारी हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर तकरीबन 12 नौजवानों ने अबू बकर पर बेदर्दी से हमला करके इसे कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक अबू बकर अपने घर में वाहिद कमाने वाला था। आखिर में हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश काबीना इजलास में 69 तजावीज़ मंजूर। क्वांटम कंप्यूटिंग निज़ाम को हरी झंडी दिखाई गई। रियासती वज़रा को चीफ मिनिस्टर ने दी मुबारकबाद। तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टैलिन का इल्जाम, कहा SIR को DM के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। RSS के माली मामलात पर कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे के सख्त सवालात। मोहन भागवत को कानूनी माहिरीन के साथ मुबाहिसे का दिया चैलेंज। तेलंगाना तराने के खालिक और मारूफ शायर अंदेसरी का इंतकाल। रियासती एजाज के साथ आखिरी रसूमात का ऐलान। दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत। आदाब।